जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्तरे गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमन्निनादमड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवम् तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरीतिलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट. Hello guys, what's up? Namaste to all. Today's weather is awesome. So we are doing Surya Namaskar, traditional Surya Namaskar or simple Surya Namaskar. So let's get start. Now we have to all stand in Samasthiti. Relax, full body relax, complete body relax, face relax. Now, first of all, raise your hands, inhale, both hands up, draw your palms, exhale, namaste, namaskar asana. Second is inhale, arch back. Keep your elbows straight, chest up, look up, Uttanasana, and exhale, forward bend, Padhastasana. If possible, your abdomen touch on your thighs and forehead down. Now bring your right leg back, right knee straight. Aswasanchalanasana, chest up, look up, exhale, other leg back, plank pose, like this, contract your hips, normal breath. Now drop knee, chest, chin down. Ashtang Namaskar or Sashtang Namaskar, normal breath. Now inhale, raise your chest, look up, flat your toes, shoulder outside. Exhale, mountain pose. Now tuck your toes in, hips up. If possible, your heel down, touch on mat or floor. Now bring your right leg forward in between your both palms. Again Aswasanchalanasana, and left leg forward in between your both palms, Padhastasana, forehead down. Now inhale again, raise your hands, arch back. Exhale down, both palm down, Padhastasana, head down. Now inhale, bring your left leg back, left knee straight, chest up, look up. Exhale, other leg back, plank posture, like this. Contract your hips and core muscles. Normal breath. Now drop knee, first your chest and chin down, your stomach and hips up, like this. Sastang Namaskar or Ashtang Namaskar. Now inhale up, Cobra pose, chest up, shoulder outside. Keep your elbow straight if possible and look up. Now exhale, mountain pose, tuck your toes in. If possible, again heel down. Now bring your left leg forward
in between your both palms. Right knee straight, chest up, look up. Exhale, other leg forward in between your both palms. Forehead down, Padhastasana. Now inhale, arch back. First Uttanasana. And last finish, Namaskara. So guys, we can start Surya Namaskar from 7 repetition. Later on, we can increase up to 21 Surya Namaskar as your capability. You can join my yoga family on this YouTube channel by pressing like, share and subscribe button. Don't forget the bell icon. So namaste guys and thanks. Soon we will meet again in the new video. Hello guys, what's up? Namaste to all. So today we are going to do hold every posture of Surya Namaskar for 10 breaths. Surya Namaskar will help recharging our body and increase our flexibility or immunity. So let's get started. So sit together or legs together. Now stand in Samasthiti. Complete body relaxed, face relaxed. Now inhale, raise your hands up above the head, join your palms. Exhale, Namaste, Namaskar Asana or Pranam Asana. Now inhale, raise your hands, arch back and hold. Continuous breathing. 10 deep breath, inhale, exhale. Exhale, forward bend. Padhastasana. Forehead down, knee straight if possible. Your abdomen touching your thighs and chest. And forehead down, knee straight. And again, continuous breathing. Inhale, exhale. Breathe in, out. Knee straight. Inhale. Take your right leg back. Ashu Sanchalan Asana. Now, back knee straight. Bend your left knee 90 degrees. Chest up. Look up. Inhale, exhale. Continuous breathing. Now, left leg back. Dandasana or plank pose. Now contact your hips and abdomen muscle. Inhale, exhale. 10 deep breath. Look forward. Now drop knees, chest, chin down. Ashtanga Namaskar. Inhale, exhale, normal breath. Now inhale, raise your chest. Look up. Chest up. Shoulder outside. Continuous breathing.
Tuck your toes. Hips up. Mountain pose. Heel down. Touch on mat. Focus on your navel. Knees straight. Now inhale. Right leg forward. In between your both palms. Look up. Chest up. Continuous breathing. 10 deep breath. Inhale, exhale. Now, left leg forward in between your both palms. Padhastasana. Your maximum stretch. Knees straight. वो खराब हो गया ये खराब तो पहला थी Now inhale, arch back. Raise your hand. Hasta Uttanasana. तो हाँ ये करे तो उठा करे ना वो भी आओ तो बंद कर दे Now exhale, forward bend. Padhastasana. Knees straight. Forehead down. The maximum stretch. Continuous breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now inhale. बैलेंस में Left leg back. एक दिन में होगा Bend your right knee 90 degrees. Asu Sanchalanasana. Left knee straight. Look up, chest up. Now right leg back. Dandasana. Plank pose. Contract your hips and abdomen muscles. Now drop knees, chest and chin down. Ashtanga Namaskar. Now inhale, raise your chest. ये कॉल Keep your elbow straight. तो पहले Look up, chest up. दिन भर ऐसे ही रहेगा दिन भर ऐसे रहेगा शाम से दीवार बंद हो जाएगा पूरी फिर नीचे रहता बंद कर जाएगा फिर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा नीचे को Now touch your toes. वो में एक दिन आए Heel down, touch on mat. Focus on your navel. Continuous breathing. Mountain pose. Now inhale,
left leg forward पहले ही in नीचे between your both palms. बीच में करो फिर Asu हाथ Sanchalan ऊपर Asana. समझाओ Right knee straight and your left knee 90 degree and look up, chest up. Now inhale, right leg forward in between your both palms, knee straight. And take 10 deep breaths. Inhale, exhale, continuous breathing. Now inhale, raise your head, arch back, Hasuttanasana. 10 का फील And last. So guys, we can increase number of repetition of sun salutation as your capability. You can join my yoga family on this YouTube channel by pressing like, share and subscribe button, and don't forget hit the bell icon. Soon we will meet again in the new video. And stay safe and stay healthy. Keep doing yoga. Namaste to all. Hi guys, Namaste to all. I hope all you are doing well. So today we are going to do Ashtanga Vinayasa Surya Namaskar part 1. So let's get started. So first of all we have standing Samasthiti, complete body relaxed, face relaxed. Now inhale, raise your hands up above the head, join your palms, Urdhva Hastasana, and exhale, slowly forward bend, Uttanasana. Now inhale, chest up, Urdhva Uttanasana. If beginners who are not able to jump, so they are simply walk back. If possible, we can do jump like this. Jump back, Chaturanga Dandasana. And inhale, chest up, raise your chest, shoulder outside, toes flat. Inhale, exhale. Now complete inhale, complete exhale. Urdhva Mukha. Now tuck your toes and hips up. If possible, heel down, touch your mat and look your navel. Focus on your navel. Take you 5 deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now jump forward in between your both palms like this. Now exhale down, Uttarasana. Your abdomen touch on your thighs and if possible head touch on your knees. Now inhale, raise your hands up above the head, Urdhva Hastasana,
and again slowly forward bend. Uttanasana. Head down. Now inhale. Urdhva Uttanasana. Now inhale, jump back. Chaturanga Dandasana. Now inhale, raise your chest. Keep your elbows straight. Toes flat. Shoulder outside. Take a deep breath and completely exhale. Now 5 inhale and 5 exhale. Hold this posture. Again inhale, 3, exhale, 4 inhale, complete exhale. Last 5 inhale, complete exhale. Now tuck your toes, hips up. Adho Mukha Svanasana, if possible, heel down. Look your navel. Now again 5 deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last inhale, exhale. Now jump forward again in between your both palms. Urdhva Uttanasana. And head down. Your abdomen touch on your thighs and head down. Uttanasana. Now inhale. Raise your hands up above the head. Urdhva Hastasana. So guys, we can start with 5 repetition, and later on we can increase up to 11 repetition. We for our complete body warm up. So you can join my yoga family on this YouTube channel by pressing share, subscribe and like button. Don't forget hit the bell icon. So namaste guys, and thanks to all. Soon we will meet again in the new one. Hi guys, namaste to all. I hope all you are doing well. So today we are doing Ashtanga Vinayasa Surya Namaskar part 2. So let's get started. So first of all, we have stand in Samasthiti, complete body relax, face relax. Now inhale, raise your hands up above the head, bend your knees, Utkatasana. Exhale, forward bend, both knees straight, head down, Uttanasana. Now inhale, chest up, head up, Urdhva Uttanasana. Now jump back, Chaturanga Dandasana, like this. Bend your elbow. Inhale, raise your chest, toes flat, shoulder outside, chest up, look up. Urdhva Mukha Svanasana. Now exhale. Tuck your toes in, heel down. Adho Mukha Svanasana.
Now inhale, take your right leg front in between your both palms. Now bend your right knee 90 degree and left leg, take your left leg 45 degree. Raise your hands, join your palms, Veerbhadrasana. Now both palm down. Exhale, right leg back. Chaturanga Dandasana. Inhale, raise your chest, keep your elbows straight, normal breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. Shoulder outside, look up, tuck your toes, heel down. Adho Mukha Svanasana. Now inhale, left leg forward in between your both palms. Bend your left knee 90 degree and take your right leg 45 degree and both hands up above the head and join your palms. Normal breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now both palm down. Left leg back. Exhale. Now Chaturanga Dandasana. Bend your elbow 90 degree. Inhale. Raise your chest. Urdhva Mukha Svanasana. Chest up, shoulder outside. Inhale, exhale. Now exhale. Tuck your toes in. Adho Mukha Svanasana. Hold this posture. 5 breaths. Focus on your navel. Inhale. Complete exhale. Inhale. Completely exhale. Inhale. Completely exhale. 4 inhale. Completely exhale. Last 5 inhale. Completely exhale. Now jump forward in between your both palms. Urdhva Uttanasana. Chest up and exhale down. Uttanasana. If possible, your abdomen touch on your thighs. Head down. Your maximum stretch, knees straight. Now inhale, raise your hands up above the head, bend your knees, Utkatasana. Now knees straight, Samasthiti. Now again. Now inhale, bend your knees, raise your hands up above the head, join your palms. Exhale, forward bend, your head toward the knees. Uttanasana, head down, knees straight. Inhale, chest up, look up. Urdhva Uttanasana. Now inhale. Now jump back. Chaturanga Dandasana. Bend your elbow 90 degree and inhale. Raise your chest, shoulder outside. Look up, chest up. Urdhva Mukha Svanasana. Normal breath.
and exhale. Tuck your toes in. If possible, heel down, touch your mat. Focus on your navel. Adho Mukha Svanasana. Now take your right leg front in between your both palms like this. Bend your right knee 90 degree and take your left leg 45 degree. Both hands up. Join your palms. Veerbhadrasana. Normal breath. Inhale, exhale. You can hold in this posture. If possible, 10 seconds or 20 seconds every posture. And exhale, both palm down. Now take your right leg back. Chaturanga Dandasana. Bend your elbow 90 degree and raise your chest. Inhale, look up. Urdhva Mukha Svanasana. Shoulder outside, normal breath. Inhale, exhale. Hold. Inhale, exhale. Now tuck your toes in. Adho Mukha Svanasana. Focus on your navel if possible. Your heel down. Touch on mat. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. You can do 10 or 20 deep breaths in this posture. Now take your left leg front in between your both palms. Now bend your left knee 90 degree and right leg, take your right leg 45 degree. Both hands up. Veerbhadrasana. Again hold. Normal breath. Inhale, exhale. Complete inhale. Complete exhale. Now both palm down. Take your left leg back. Chaturanga Dandasana. Bend your elbow 90 degree. Contact your hips. Now inhale. Raise your chest. Urdhva Mukha Svanasana. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Shoulder outside. Exhale. Tuck your toes in. Heel down. Touch your mat. Focus on your navel. Breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Knee straight. Inhale, exhale. Feel the good stretch. Now jump forward in between your both palms. Urdhva Uttanasana. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Knee straight. And exhale, forward bend. Chest down. Touch for your knees and head down. Uttanasana. Now inhale, raise your hands up above the head, bend your knees. Utkatasana. Hold this posture. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And relax. Samasthiti. So guys, we can start with 5 repetition and later on we can increase up to 11 repetition for our complete body workout.
So you can join my yoga family on this YouTube channel by pressing like, share and subscribe button, and don't forget hit the bell icon. So namaste to all and thanks. Soon we will meet again in the new video. Namaste. नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा से नितिन योगी। तो आज के योगा सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्राणास को शुद्धिकरण कर सकते हैं। हाउ टू प्यूरिफाई आवर प्राणास। तो उसमें हम कुछ ब्रीदिंग बताएंगे, जैसे भस्त्रिका। उसमें हम वेरिएशन भी बताएंगे आपको, बदलाव क्या क्या, उसके अलावा भी क्या क्या भस्त्रिका में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीधा कमर, बिल्कुल आंखें बंद, और अभी चेस्ट ब्रीदिंग करना है फास्ट। लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस पूरा एक्सेल करना है, छोड़ना है, लाइक दिस। तो ऐसे हम लगातार कम से कम 30 से 60 ब्रीदिंग कर सकते हैं। फास्ट करना है इसमें ब्रीदिंग, कम से कम 30 से 60 करना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसका हम अभी सेकंड वेरिएशन बताएंगे आपको। सेकंड वेरिएशन में हाथ दोनों साइड में उठा लेंगे, ऐसे शोल्डर के बराबर में हाथ रखना है, और सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है और नीचे झटके के साथ एक्सेल कर देना है, छोड़ देना है। तो नाउ लाइक दिस, स्टार्ट। इस वेरिएशन में भी हम 30 से 60 ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब 1-2 मिनट या 3 मिनट तक ले जा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नाउ इसका थर्ड वेरिएशन, तीसरा वेरिएशन में हम दोनों हाथ, एक हाथ राइट हैंड जो राइट पाम है अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, और लेफ्ट पाम है अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, लाइक दिस। और पूरा चेस्ट ऊपर करेंगे, चेस्ट अप, नेक स्ट्रेट एंड आईज क्लोज, एंड अगेन स्टार्ट। तो अगेन इसको दोबारा से हम 30 से 60 आवर्तियाँ दोहराना है, कम से कम 30 से 60 बार करना है। इसका अभी लास्ट वेरिएशन करेंगे। लास्ट वेरिएशन में क्या है कि हम पीछे से अपने दोनों एल्बो को पकड़ लेंगे, कैच करेंगे, लाइक दिस। ऐसे पीछे से दोनों एल्बो कैच करना है, चेस्ट अप, चेस्ट ओपन करना है पूरा, शोल्डर बाहर की तरफ, शोल्डर आउटसाइड, एंड नेक स्ट्रेट। नाउ अगेन breath, fast inhale and fast exhale. एंड रिलैक्स। तो ये हमारे कम से कम 10-15 मिनट जो ब्रीदिंग, इसको हम कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जो हमने 4 वेरिएशन बताए हैं आपको अलग अलग, तो इनको हम अलग अलग रेस्ट करके करना है। बीच में हमें डीप ब्रीदिंग करना है, बीच में हमें 30-30 सेकंड रेस्ट करके इनको चारों वेरिएशन को दोहरा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आपको कुछ और प्रैक्टिस बताएंगे, प्रक्रिया बताएंगे। आज हम कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति सबसे पहले किनको नहीं करना चाहिए या करना है तो किस स्पीड में करना है। सबसे पहले जिसको हाई बीपी है उसको कपालभाति बिल्कुल कम से कम 3 से 5
सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। कपालभाति कम से कम 3 से 5 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है, मतलब 1 मिनट में 15 से 20 स्ट्रोक ही लगाना है। 15 से 20 स्ट्रोक लगाना है। जिसको हाई बीपी हो या किसी प्रकार की एंजाइटी हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, हृदय की कोई दिक्कत हो, उसको कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 स्ट्रोक ही लगाना है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकता है, मतलब 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लगा सकता है। और जो और पूरा इंटरनली स्वस्थ है आंतरिक रूप से, तो वो ज़्यादा भी लगा सकता है। 1 मिनट में 80, 90, 120 तक भी, मतलब दुगने भी लगा सकता है। तो सबसे पहले हम जिसको हाई बीपी हो या हार्ट प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो 3 या 5 महीने के बाद उसको करना है, तो सबसे पहले उसके लिए कैसे करना है कपालभाति। तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा लगाना है। तो वायु मुद्रा में फर्स्ट फिंगर बेंड करनी है, उसके ऊपर अपने थंब को प्लेस करना है, रखना है, और दोनों रिस्ट आपकी नीज के ऊपर, और बैक स्ट्रेट, बिल्कुल मंद गति से करना है। इसमें क्या होगा कि आपका स्टमक इन एंड ब्रीथ आउट इन सेम टाइम, उसी समय में आपका पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगा। तो कैसे करना है देखेंगे, लाइक दिस। तो ये स्पीड रखना है जिनको हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, और कोविड के पेशेंट को भी यही स्पीड रखनी है। बस 20-25 स्ट्रोक लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और एक नॉर्मल आदमी व्यक्ति तो कितना लगा सकता है, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकता है, लाइक दिस। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। और भी हम इसे फास्ट कर सकते हैं, जैसे 1-2 बार किया, और जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है 15-20 दिन में, महीने के बाद, तो हम इसकी स्पीड और भी बढ़ा सकते हैं। और तेज़ में कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी बॉडी के परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें कपालभाति करना है। तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। फ़ायदा सबसे पहले हमारी फेस को ग्लो देता है, ये फेस में कांति लाता है। सेकंड, किसी को एनी टाइप ऑफ एलर्जी, साइनस की प्रॉब्लम, नाक में छींक आनी, या और जैसे गले में खराश रहना। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उनको आंतरिक रूप से ताकत देता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। उनको स्ट्रेंथन मतलब इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी, या और प्रोस्टेट ग्लैंड की, या और आंतरिक शुगर हो गया, डायबिटीज़ जैसे जिसे, तो उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होती, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग। कपालभाति से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो भी शरीर में ब्लॉकेज है, वेंस में, नसों में जो भी ब्लॉकेज हैं, वो 3 से 5 महीने में हम प्रैक्टिस करते हैं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा तक ले जाते हैं असाध्य रोगों के लिए। तो वो बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है वो बिल्कुल खुल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेकंड प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम क्या होता है, हमारे 3 बंद लगते हैं। 3 बंद, पहला मूल बंद लगता है, जो हम अपने यूरिनरी पार्ट और एनस पार्ट को ऊपर खींचते हैं, संकुचित करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम हमारे जो एब्डोमिन रीजन है, एब्डोमिन रीजन को अंदर
पूरा चिपका के रखते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंदर, और लास्ट में अपना चिन डाउन करते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद में हम चिन नीचे कर लेते हैं और वहीं पे ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं बाहर छोड़ के। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सांस लेना है पूरा अंदर खींच के, और पूरा झटके से 2-3 सेकंड में पूरा श्वास खाली कर देना है। उसके बाद नाउ कॉन्ट्रैक्ट योर हिप्स एंड यूरिनरी रीजन, अपने एनस के पार्ट को और हिप्स को खींचना है, और अपने एब्डोमेन रीजन को पूरा अंदर दबाना है इसे, एंड चिन डाउन, ब्रीथ होल्ड। और धीरे धीरे पहले जालंधर बंद हटाना है, उड़ान बंद हटाना है, और फिर नीचे से मूल बंद हटा देना है। तो इसको हम इसके बाद हम इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन और ब्रह्मचर्य आसन में, तो इसका और डबल इफेक्ट मिलता है। तो पद्मासन लगाएंगे सबसे पहले। लेफ्ट एंकल अपनी राइट थाई पर रखना है, राइट एंकल प्लेस ऑन योर राइट थाई, एंड अगेन डीप ब्रीथ इन, लंबा गहरा श्वास, एंड ब्रीथ आउट लाइक दिस। Contract your hips, anus and urinary part like this, and contract your abdomen region and chin down. तो ऐसे बाह्य प्राणायाम करना है। इसमें क्या है कि अपने बॉडी के सिचुएशन के हिसाब से करना, परिस्थिति के हिसाब से करना। इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना स्टार्टिंग में। जितना आपसे होल्ड होता है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे 1, 2, 3 महीने, तो वो अपने आप ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, टाइमिंग उसकी बढ़ जाएगी। तो इसको हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बढ़ाना है, क्योंकि एकदम से ज़बरदस्ती कभी नहीं करना। और कोविड पेशेंट को तो बिल्कुल ही अभी फ़िलहाल अवॉइड ही करें तो अच्छा है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन बाद में हम दोबारा सांस लेते हैं तो बढ़ भी जाती है। लेकिन क्या है कि होल्ड करने से कोविड पेशेंट को इसमें दिक्कत भी हो सकती है। तो कोविड पेशेंट को बाह्य प्राणायाम अभी नहीं करना चाहिए। और इसके फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे धातु रोगों को, जो भी धातु रोग है उसको शांत करता है, उसको सही करता है। और उसके बाद हमारे जठराग्नि को, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है? हमारी जो तीनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे ईड़ा पिंगला का हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में घर्षण होता है, उसका भेदन होता है, तो उसका शुद्धि होती है। तो जो भी तो हमारे शरीर में टोटल जितनी भी सारी नाड़ियां हैं, 10 करोड़, 10 लाख, 10,210 नाड़ियां, उनको प्यूरीफाई करता है, उनको शुद्ध करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करता है। जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष को शांत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जिसके तीनों दोष शांत हो जाते हैं उसका पूरा शरीर नॉर्मल मिलेगा, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं मिलेगी कभी भी। और जैसे हमारे साइनस रोग हो गया और धातु रोग हो गया, तो उसको भी शांत करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम शुरुआत करेंगे। कैसे करना? सबसे पहले हम इसमें प्राण मुद्रा लगा लेंगे। प्राण मुद्रा में और ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगेगा। जो लास्ट के 2 फिंगर्स है उसको थंब के साथ मिलाना है, और जो अपनी लेफ्ट रिस्ट है वो लेफ्ट नी पर रख लेना है, बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। और क्या कई लोग क्या करते हैं, इस एल्बो को उठा लेते हैं, तो ये एल्बो को नहीं उठाना, बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, आराम से बैठना है। कमर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं चाहिए, बॉडी में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम अपनी राइट नोस्ट्रल पर रखना है, तो दाईं नासिका पर रखना है और आंखें बंद कर लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है लंबा गहरा, जितना आप 2.5 से 5 सेकंड, 6 सेकंड
में कर सकते हैं जितना आपके लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। अभी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है पहले, और राइट से धीरे से एक्सहेल कर देना है, पूरा खाली कर देना है। अभी जिससे छोड़ा है, राइट से छोड़ा है, एक्सहेल किया है, उसी से लंबा गहरा सांस लेना है। डीप इनहेल, और राइट नोस्ट्रल बंद कर लेंगे पहले से, और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। फिर दोबारा से लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट क्लोज बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। इसके बाद दोबारा राइट से लेना है। और लेफ्ट से पूरा खाली कर देंगे श्वासों को। तो ये क्या है कि हमारे 2 साइकिल हुए, मतलब हमने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, दोबारा राइट से इनहेल किया, लेफ्ट एक्सहेल किया। ये हमारा एक साइकिल होता है, आना जाना पूरा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक साइकिल होता है। तो इसको हम कम से कम अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका शरीर थक जाता है तो हम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो ये आधे घंटे में हमारे शरीर को पूरा प्राणा को शुद्ध कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती इससे कभी। इसके बाद हम अगला भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम साथ करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम जिनको माइग्रेन की समस्या हो या डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, सबसे पहले जो अपने ईयर कैनाल है उनको बिल्कुल क्लोज कर देना, बंद कर देना है। और जो फर्स्ट फिंगर है अपने आईब्रोज के ऊपर रखनी है, और आपका ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आईब्रोज के बीच में आपका ध्यान होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। तो फर्स्ट फिंगर रख ली अपनी आईब्रोज पर, और जो बची हुई तीन उंगलियां हैं आंखों पर ऐसे रख लेना है, लाइक दिस। और डीप ब्रीदिंग इन करना है, लंबा गहरा सांस लेना है, और लिप्स क्लोज करके हमरिंग साउंड करना है विद एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए हमरिंग साउंड के साथ हमें एक्सहेल करना है, लाइक दिस। डीप ब्रीथ इन, दोबारा से सांस लेना है, पूरा इनहेल करना है अंदर। फिर से लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीथ इन, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में, दोनों आंख बंद रखेंगे। तो हम भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 7 से 11 से 21 बार तक कर सकते हैं, 21 टाइम। जिनको ज़्यादा ही मतलब डिप्रेशन है या एंजाइटी हो या माइग्रेन है, तो उनको हम कम से कम 7 से स्टार्ट करके 11 से 21 बार तक करा सकते हैं। और इसके बाद हम उज्जई काट दें, होगी और इसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। 3 बार ओम का जाप करेंगे। तो इसको भी हम 3 से 11 से 21 बार कर सकते हैं।
जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या मेंटली कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इसमें क्या करना है, कम से कम 3 से 5 से 7 सेकंड में श्वास लेना है वो लंबा गहरा, और ओम का जाप करना है एक्सेल करते हुए मुंह से, लाइक दिस। दोबारा से टेक ए डीप ब्रेथ इन। शांति शांति शांति। नाउ रब योर पाम, दोनों हथेलियों को पूरा गर्म करना है, पूरा रब करना है जितना हो सके। जब पूरा गर्म हो जाएगा तो आँखों पर लगा के रखना है, ऊपर लगाना है दोनों हाथों को, कम से कम 5 से 10 सेकेंड। और धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आना है, पूरे फेस पर, पूरे नेक पर, चेस्ट, एब्डोमेन, पूरा एनर्जी को फील करना है। जो भी आपने एनर्जी फील की है योगा के दौरान, अपने फीट पूरा नीचे, एंड स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते। योगा की जो सेशन वीडियो है अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन योगी। आज बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है हमारे देश में कोविड पैंडेमिक को लेकर। तो आज बहुत ही ऑक्सीजन की हमको किल्लत हो रही है, और जो ऑक्सीजन है हमारे प्राण हैं, उससे बड़ी कोई आज तक दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। क्योंकि जब हमारे प्राण निकलते हैं तभी हमारा अंतिम श्वास निकलता है, तो तभी हमारी मृत्यु होती है। तो उसको आज हम बताएंगे एक्सरसाइज या यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, हाउ टू इम्प्रूव योर ऑक्सीजन लेवल, कि हम कैसे अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग तो वैसे सभी को पता है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, या और डीप ब्रीदिंग हो गया, तो ये तो सभी को पता है। तो हम आज कुछ इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे आपको। तो हमारे पास आज 3 पिल्लो हैं, इनका सहारा लेंगे। तो सबसे पहले इनको सीधा रख लेंगे, बिल्कुल जैसे 3 पिल्लो हैं उसको सीरियल वाइज रखना है, 2, ठीक है। रखने के बाद हम ऐसे घूम जाएंगे अपने राइट साइड, और अपना जो थोरेसिक रीजन है, जो कमर का ऊपर वाला भाग है, उसको पूरा पीछे लेके जाएंगे और ऐसे लेटा, गर्दन को पूरा पीछे ढीला छोड़ देंगे, कमर को बिल्कुल ढीला। और इसी पोस्चर में हमको कम से कम 30 बार डीप ब्रीदिंग करना है।
deep inhale, completely exhale, deep inhale, completely exhale, deep inhale, completely exhale. तो इस जो आवर्ती को है, प्रक्रिया को है, प्रोसेस को हमको कम से कम 30 बार करना है, 30 टाइम्स इसको दोहराना है। तो इससे क्या है, हमारी लंग्स एक्सपेंडेशन उसका बढ़ जाएगा, उसका फुलावट जो लंग्स की है इंटरनली वो बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो वज्रासन में बैठने के बाद जो हमारा फर्स्ट पिलो है उसको ऐसे नीज के बीच में रखेंगे। ठीक है, ऐसे बैठ गए नॉर्मली, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अब इसमें 2 पिलो का काम है सिर्फ। तो जो सेकंड पिलो है उसको हमारे नाउ पुट योर एब्डोमेन ऑन योर सेकंड पिलो। जो हमारा एब्डोमेन रीजन है, पेट का रीजन है, सिर्फ उसी को अपने सेकंड पिलो पर रखना है। ठीक है, तो हम ऐसे लेट जाएंगे लाइक दिस। एब्डोमेन रीजन को पुट किया। अभी नाउ बेंड योर नीज बेंड कर लेंगे और सिर्फ ऐसे लेट जाएंगे नॉर्मली। फोरहेड नीचे रख लेंगे और अभी डीप ब्रीदिंग करेंगे 30 टाइम्स अगेन। तो इस आवृत्ति को हम दोबारा 30 बार कम से कम 30 टाइम्स दोहराना है, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को। और अंतिम में सबसे लास्ट, ये हमारे बिल्कुल इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल हम जो भी लोग ऑक्सीजन को मतलब जिनकी मांग है या जो ज़्यादा जिनको प्रोसेस मतलब उनको ज़रूरत है, तो उनको एक जब इमरजेंसी हम एक ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं, उनका इम्प्रूव एकदम से कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हम पूरा एब्डोमेन रीजन पे लेट जाएंगे ऐसे बाल आसन में। ठीक है, राइट हैंड आपका साइड में रखेंगे एंड बेंड योर एल्बो। लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। नाउ राइट लेग फॉरवर्ड एंड बेंड योर नी एंड हेड डाउन लाइक दिस। सर अपर नीचा रहेगा और यहीं पर डीप ब्रीदिंग करना है 30 बार अगेन। डीप ब्रीदिंग करते रहिए, पूरा लंबा गहरा श्वास। अभी 30 बार वन साइड करना है, एक साइड करना है। उसके बाद हम करवट बदलेंगे, मतलब साइड चेंज करेंगे अपने दूसरी तरफ। राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड करवट लेंगे अगेन। राइट लेग स्ट्रेट एंड बेंड योर लेफ्ट नी। लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, राइट हैंड ऐसे आगे रखना है। बेंड योर एल्बो एंड हेड डाउन। अभी 30 आवृत्तियाँ 30 टाइम ब्रीदिंग करना है। दोबारा से डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, डीप इनहेल, completely exhale, again deep inhale and complete exhale. Now 30 टाइम पूरा होने के बाद 30 की आवृत्तियाँ पूरा करने के बाद सिट अप। तो आज हमने आपको जो 30-30 जो आवृत्तियाँ बताई हैं हर एक पोस्चर में डीप ब्रीदिंग की, तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है, जैसे आपका 92 है, तो आपका 4-5 मिनट में ही आपको ये पूरा करने के बाद 96-98 पर पहुंच जाएगा। तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है योगा में, जो योगा थेरेपी है उसके अनुसार। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, आप यूज़ करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
थैंक यू। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। मेरी बनाई तकदीरें आंखों भरी ये तस्वीरें, फिर भी हैं क्यों बेजुबान मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। जिंदगी की तक तेरे काम आवे, तू ना झुकवे तो मेरी ना से, हाँ झुकवे तो मेरी हाँ से, जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वा और कोई को न मेरी माँ से।